नेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, इंडीड बहुत रिसोर्सेज है, बट सारे अनस्ट्रक्चर्ड है। स्ट्रक्चर्ड कोर्स करिकुलम से एंड आपके टीचिंग स्टाइल से मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। He said you were the only one this year who received a full score in GSOC selection. कि जितना अर्ली स्टार्ट करो उतना बेस्ट रहता है। Hi everyone, and all of these companies that you see behind me, these are the results of Apna College Tech placements for software engineering roles. As per my best knowledge, these are one of the highest numbers when we talk about Indian tech placements with online preparation. These are the companies where our students are currently working or are doing their internships in. And iske andar we'll find different types of tech companies, whether it be product based, service based, fintech firms or startups. First of all, congratulations to all of the students, and we'll find more of our selected students on the Apna College website. And in today's session, we are going to announce something special and different related to machine learning, artificial intelligence and Gen AI. If we talk about AI today, we are actually interacting with it every single day without even knowing it. If we use devices which have Face ID, it has facial recognition which is happening with the help of AI. If we are interacting with tools like ChatGPT or Gemini, or if we are using Copilot for our coding exercises, we are actually using AI behind the scenes. If we talk about finance, we have fraud detection, we have loan approvals. If we talk about medicine, we have drug discovery and diagnosis, which is happening with the help of AI. If we talk about e-commerce, we have product recommendations. If we talk about entertainment with applications like Netflix, Prime Video, Instagram, YouTube, we actually have ads and content suggestions which are happening with the help of AI. So if we interact with technology today, we are actually interacting with LLMs, NLP, computer vision and transformers without even knowing it on a daily basis. And this was the user end of the story. But today's session is going to be about the AI creator end of the story. Basically, how can we become a professional who is actually responsible for designing, for building, for creating, for integrating AI in the industry. So for the past few months, we've been constantly getting messages, emails and comments regarding a new structured batch for artificial intelligence, for AI. And today, Apna College is going to launch the new AI batch, which is Prime, for all the future AI engineers and data scientists. This is going to be a complete structured 4 months batch which will help us become AI job ready. इस बैच के अंदर हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को, सिर्फ कोड को नहीं करेंगे. वी आर एक्चुअली गोइंग टू बिल्ड अ लॉट ऑफ माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स विच आर गोइंग टू मेक अस इंडस्ट्री रेडी, गिव अस more practical experience and enhance our resume. Plus, we will also get dedicated doubt support for resolving all of our doubts. So, for all the students who are dedicatedly requesting for the AI batch, there's an early bird offer जो रहेगा अगले 4 दिन, यानी 27 अक्टूबर शाम के 9 बजे तक. The link for enrolling in the batch is in the description box. हमारी प्राइम की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 15th नवंबर से. Now let's talk about the batch in detail. सबसे पहले बात करते हैं of an overview of the different kinds of tech roles which are available in the industry. The most sought after roles in AI industry are of an AI engineer and a data scientist. अब यहाँ पर हमें सिर्फ टाइटल्स पर फोकस नहीं करना, हमें एक्चुअली स्किल्स पर फोकस करना है, क्योंकि हो सकता है किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर जो काम एक AI इंजीनियर करता है, उस इंजीनियर के पास टाइटल हो ऑफ अ मशीन लर्निंग इंजीनियर और एन AI ML इंजीनियर और अ जेन AI इंजीनियर. या फिर ये भी हो सकता है कि अगर एक इंजीनियर है जिसका काम है मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड करना, तो कंपनी ए के अंदर उनका टाइटल AI इंजीनियर भी हो सकता है, कंपनी बी के अंदर उनका टाइटल डेटा साइंटिस्ट भी हो सकता है. सो टाइटल्स आर समथिंग विच आर वेरी कंपनी डिपेंडेंट एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल. तो हमें टाइटल पर नहीं, हमें यहाँ पर स्किल्स एंड टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज पर ज्यादा फोकस करना है. तो जनरली एक AI इंजीनियर से द बेसिक एक्सपेक्टेशन इज कि उन्हें डेटा, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग की नॉलेज होनी चाहिए, प्लस उसके साथ में दे शुड ऑल्सो बी फेमिलियर विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स. तो यहाँ पे दे शुड बी फेमिलियर विद एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें मेजॉरिटी केसेस में पाइथन आ जाती है. दे शुड बी फेमिलियर विद SQL बिकॉज इट इज यूज्ड इन अ लॉट ऑफ डेटाबेसेस, क्योंकि उनको डेटा के साथ डील करना है. प्लस डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा प्री प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरीज होती हैं, उनके साथ फेमिलियरिटी होनी चाहिए. And they should also be familiar with the deep learning libraries and modules जैसे TensorFlow हो गई, जैसे PyTorch हो गई.
कुछ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये भी एक्सपेक्टेड होता है कि एआई इंजीनियर का डेडिकेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए और वर्किंग विद ओपन एआई एपीआईज, क्योंकि आज की डेट में एआई इंडस्ट्री में द लार्जेस्ट कंपनीज ओपन एआई, तो कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो डेडिकेटेडली ये एक्सपीरियंस भी डिमांड करती हैं। प्लस क्योंकि हमें एआई मॉडल्स को अपने सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करना होता है, अपनी एप्स के साथ, अपनी वेबसाइट्स के साथ, तो वहाँ पर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस भी कुछ कंपनीज में एक्सपेक्टेड होता है, एंड दिस कुड बी डन विद द हेल्प ऑफ फ्लास्क। हमें वर्जन कंट्रोल की नॉलेज होनी चाहिए विद गिट एंड गिटहब, हमें डॉकर एंड कुबरनेटीज जैसे टूल्स को यूज करना आना चाहिए। सो दीज आर द बेसिक एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एन एआई इंजीनियर, जो थोड़ा कंपनी टू कंपनी वेरी भी कर सकती है। नाउ वी टॉक अबाउट अ डेटा साइंटिस्ट, तो डेटा साइंटिस्ट का मेजॉरिटी काम होता है टू डील विद डेटा, मशीन लर्निंग, एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो एक्सपेक्ट डीप लर्निंग नॉलेज फ्रॉम देम। तो प्राइम को, अपने एआई बैच को हमने इस तरीके से बनाया है कि इट विल हेल्प अस प्रिपेयर फॉर ऑल द एआई इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स, एंड इट विल ऑल्सो मेक अस एलिजिबल फॉर द डेटा साइंटिस्ट रोल्स। तो अगर हम डेडिकेटेडली इंडस्ट्री के अंदर एआई इंजीनियरिंग या डेटा साइंटिस्ट रोल्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो हम अपनी तैयारी को प्राइम से आकर कर सकते हैं। प्लस इफ वी आर ऑलरेडी अ वर्किंग प्रोफेशनल हु वांट्स टू एनहांस देयर रेज्यूमे फॉर द लेटेस्ट जॉब ट्रेंड्स, मतलब इफ वी वांट टू ऐड मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग स्किल्स टू आवर रेज्यूमे, फिर चाहे हम एक ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं जो ट्रांजिशन करना चाहते हैं, या फिर इफ वी आर अ स्टूडेंट हु लेट्स सपोज वांट्स टू प्रिपेयर फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशन, पर अगर हम अपने रेज्यूमे के अंदर भी मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग स्किल्स को ऐड करना चाहते हैं, तो इस केस में भी प्राइम इज गोइंग टू हेल्प अस। सो द नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन कम्स इज कि हु एग्जैक्टली इज एलिजिबल फॉर द एआई बैच। तो सबसे पहला तो केस है हमारा वर्किंग प्रोफेशनल्स का, यानी इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी अगर हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ डेटा इंजीनियर, एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, और अगर हम एआई के टेक रोल्स के अंदर ट्रांजिशन करना चाहते हैं, अगर हम एआई इंजीनियर, डेटा साइंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो हम अपनी तैयारी को प्राइम से आकर कर सकते हैं। प्लस इफ वी आर अ कॉलेज स्टूडेंट, इफ वी आर अ बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए स्टूडेंट हु इज करंटली इन देयर 4th year of college and wants to dedicatedly prepare for full-time roles in the AI industry, or if we are a second, third year student or a fresher student who wants to prepare for their internship opportunities in the AI sector, then we can do our preparation from Prime. So the eligible people are students and working professionals who want to dedicatedly prepare for these roles. Next, if we talk about the syllabus, the curriculum that we are going to cover in detail, then it's going to look something like this. अब in terms of syllabus, we understand that you have a limited time. इसीलिए AI बैच के अंदर हमने 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है। सबसे पहला, अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग AI ML कॉन्सेप्ट्स, सेकेंडली बिल्डिंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, एंड थर्डली सेविंग आवर टाइम। इसीलिए हम अपनी जो तैयारी है सिलेबस को, उसको मल्टीपल फेजेस के अंदर कवर करेंगे। फर्स्ट फेज के अंदर हम अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फोकस करेंगे, विच इज गोइंग टू बी पाइथन। उसके बाद वी आर गोइंग टू फोकस ऑन डेटा, मतलब डेटा कलेक्शन कैसे होता है, प्री प्रोसेसिंग कैसे होती है, विजुअलाइजेशन क्या होती है, उससे रिलेटेड डिफरेंट टूल्स क्या होते हैं, और किस तरीके से डेटा के साथ हम डील करते हैं, हम उस पर स्पेसिफिकली फोकस करने वाले हैं। उसके बाद मशीन लर्निंग को सीखने के लिए, डीप लर्निंग को सीखने के लिए जो बेसिक मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जिसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें स्टेटिस्टिक्स आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, एंड इसके साथ में और भी कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनको हम कवर करने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय लर्निंग मशीन लर्निंग, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की हम बात करेंगे। हमारी सुपरवाइज लर्निंग होगी, सुपरवाइज लर्निंग के अंदर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए, रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर हमारी एसोसिएशन प्रॉब्लम्स के लिए, हमारी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स के लिए कौन सी एल्गोरिथम्स यूज होती हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग को हम किस तरीके से करते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस जो कई सारी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स होती हैं जो मशीन लर्निंग के अंडर आती हैं, जैसे एसवीएम हो गई, सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्रीज हो गई, केएनएन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, इन सारी एल्गोरिथम्स को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। प्लस वी आल्सो हैव अ डेडिकेटेड सेक्शन ऑफ वर्किंग विद ओपनएआई एपीआईज। अब यहाँ पर हम सिर्फ प्योर एल्गोरिथम्स को कवर नहीं करेंगे, उसके साथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एक एआई इंजीनियर को, एक डेटा साइंटिस्ट को आने चाहिए, जिनको हम कवर करने वाले हैं, जैसे व्हाट इज बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ, या फिर डिफरेंट टर्म्स हो गई, जैसे प्रिसिजन हो गया, रिकॉल हो गया, व्हाट इज F1 स्कोर, इस तरीके की डिफरेंट चीज़ों को हम कवर करेंगे। एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डीप लर्निंग। डीप लर्निंग के अंदर वील टॉक अबाउट परसेप्ट्रॉन्स, वील टॉक अबाउट द डिफरेंट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स, जैसे FNN हो गए, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, RNN रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स हो गए, हमारे ट्रांसफॉर्मर्स का क्या आर्किटेक्चर होता है, ट्रांसफॉर्मर्स कहाँ यूज होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, दे आर द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड चैट जीपीटी विच वी यूज टुडे। प्लस हमारी न्यूरल नेटवर्क्स की जो इंप्लीमेंटेशन है उसको हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेंसरफ्लो। इसके साथ में हमारे जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं, जैसे हमारे LLMs हो गए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। इसमें मेजॉरिटी जो पार्ट्स हैं दे आर रिलेटेड टू जेन AI विच इज जनरेटिव AI, जैसे RAG हो गया,
गया, GANs हो गए, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स, NLP हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, CV हो गया, कंप्यूटर विजन। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स को तो कवर करेंगे ही, एंड उसके साथ में वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न अबाउट थिंग्स विच आर मोर रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे वी लर्न अबाउट फ्लास्क विच इज यूज फॉर डेवलपमेंट विद AI। अब यहाँ पर वैसे तो हमारा फोकस फ्लास्क पर होगा, पर उसके साथ में बेसिक HTML CSS हो गया, बेसिक जावास्क्रिप्ट हो गई, उन चीज़ों को भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। प्लस वी लर्न अबाउट SQL फॉर डेटा साइंस, वर्जन कंट्रोल विद Git एंड GitHub। प्लस वील ऑल्सो कवर हाउ टू वर्क विद टूल्स लाइक Docker एंड Kubernetes। अब ये तो हमारे कॉन्सेप्ट्स एंड एल्गोरिथम्स हो गए, पर प्राइम के अंदर जो हमारा मेजर फोकस होगा दैट विल बी ऑन लर्निंग बाय डूइंग, एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू बिल्ड अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो अपने AI बैच के अंदर वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट्स। मतलब हम जो अपने कॉन्सेप्ट्स करेंगे उनके साथ सिर्फ कोड नहीं लिखेंगे, उसके साथ में वी आर ऑल्सो एक्चुअली गोइंग टू सी देयर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन विद द हेल्प ऑफ माइनर प्रोजेक्ट्स। डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के साथ हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को बनाते हुए, सीखते हुए साथ के साथ चलेंगे, एंड जैसे ही हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो जाएंगे, एट द एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू बिल्ड मेजर प्रोजेक्ट्स with our more advanced concepts। तो इस तरीके से पूरे बैच के अंदर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ हम एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग को भी बिल्ड करते हुए चलेंगे। सो लॉट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स यू गोइंग टू बी बिल्डिंग विद मी, प्लस इसके साथ में देयर आर ऑल्सो गोइंग टू बी अदर एडिशनल प्रोजेक्ट्स विच विल बी कवर्ड बाय AI प्रोफेशनल्स हु आर करंटली वर्किंग इन द इंडस्ट्री। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के ऊपर ध्यान देंगे। इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स का क्या मतलब है? बेसिकली अगर हम किसी फिनटेक कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं और हमारे रेज्यूमे में अगर कोई फाइनेंस रिलेटेड मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग का प्रोजेक्ट आ पाता है, तो दैट इज गोइंग टू बी मोर रेलिवेंट एंड मोर क्रेडिबल फॉर आवर प्रोफाइल। तो इस तरीके से हम मल्टीपल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने वाले हैं। इसमें से हमारी मेजर इंडस्ट्रीज आ गई, जैसे फाइनेंस हो गया, मेडिकल हो गया, ई-कॉमर्स हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमारा ध्यान होगा, एंड उसके बाद एक तरीके से हमारे पास चॉइस होगी कि हम अपने रेज्यूमे के अंदर कौन से अपने बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मेंशन करना चाहते हैं। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन कस्टमाइज डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में या कौन सी डोमेन की कंपनीज के अंदर स्पेसिफिकली इंटर्नशिप्स या प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ तक वी हैव कवर्ड द करिकुलम एंड द प्रोजेक्ट, बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट प्राइम आर गोइंग टू बी द सेशंस। सबसे पहले वी आर गोइंग टू हैव एडिशनल सेशंस बाय AI इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। अब इन सेशंस के अंदर क्या होगा? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेटेस्ट टेक एडवांसेस इन द AI इंडस्ट्री। वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट हैंड्स ऑन इंडस्ट्री इनसाइट्स, plus we are going to learn with different projects. So in short, we are going to have multiple sessions with people with a master's or a PhD in the field of AI. अब ये तो हो गए हमारे AI specific sessions। इसके साथ में हमारे कुछ sessions होंगे which will be placement specific. These are the placement mentorship sessions जो आपके मेरे साथ हो रहे होंगे। अब जब भी हम एक placement या एक internship की बात करते हैं, whether we are a working professional or we are an engineering student, हमारे core curriculum के साथ, हमारे projects के साथ और भी कुछ additional चीज़ें होती हैं जिन पर हमें ध्यान देना होता है to actually secure a गुड प्लेसमेंट, अ गुड जॉब ऑफर। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हाउ डू वी बिल्ड अ रेज्यूमे। रेज्यूमे के अंदर कौन से सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किस सेक्शन को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, कितने प्रोजेक्ट्स को मेंशन करने हैं, टेक्नोलॉजीज़ को कैसे मेंशन करना है, हाउ डू वी बिल्ड अ लिंक्डइन प्रोफाइल, उसे किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है, हाउ डू वी सीक रेफरल्स फ्रॉम डिफरेंट वर्किंग प्रोफेशनल्स इन द इंडस्ट्री, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप्स। तो इस तरीके की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं विच आर रेलिवेंट टू गेट अ गुड प्लेसमेंट, स्पेशली एन ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, उन सबको डेडिकेटेडली हम अपने लाइव मेंटरशिप सेशंस के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सेशंस। एंड जब हम AI के अंदर इतनी सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को करेंगे, एल्गोरिथम्स को करेंगे, प्रोजेक्ट्स को करेंगे, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ डाउट्स। सो टू रिजॉल्व ऑल ऑफ दीज डाउट्स वी आर गोइंग टू हैव अ डेडिकेटेड TAs टीम, यानी टीचिंग असिस्टेंट्स की हमारे पास टीम होगी तो हमारे लेक्चर स्पेसिफिक, एल्गोरिथम स्पेसिफिक, कोड स्पेसिफिक डाउट्स को रिजॉल्व कर रहे होंगे। प्लस उसके साथ में वी आर गोइंग टू हैव लाइव मेंटरशिप सेशन जिसके अंदर हमारी क्लास के जनरल डाउट्स को हम रिजॉल्व कर लेंगे। एंड पाइथन के अंदर एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे प्रैक्टिस करने के लिए वी आर गोइंग टू गेट असाइनमेंट्स अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। सो दीज आर बेसिकली गोइंग टू बी प्रैक्टिस असाइनमेंट्स जिससे हम अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं। प्लस सारे के सारे प्राइम स्टूडेंट्स के लिए, सारे के सारे AI बैच स्टूडेंट्स के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डेडिकेटेड कम्युनिटी। जब भी हम अपनी ऑफ कैंपस तैयारी की बात कर रहे हैं, जब भी हम कुछ नया सीखने की या लेटेस्ट सीखने की बात कर रहे हैं, इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टू अंडरस्टैंड कि अब हमारी जो तैयारी है उसको हमें नेशनल लेवल पर टॉप 10%, टॉप 5% इंजीनियर्स बनने के हिसाब से करना है। तो वहाँ पर अगर हमारे पास एक लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप होता है, कम्युनिटी होती है, तो वी ऑल्सो गेट अ सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड हमारी जो नॉलेज है उसको हम शेयर कर सकते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक कॉमन ग्रुप वी आर गोइंग टू क्रिएट।
Plus, we are also going to share important job updates and notifications, and there are also going to be prizes for the top students worth 3 lakh rupees. इसके साथ में हमारे जितने भी top students होंगे, we'll give them paid internship opportunities as TAs. Next, we are going to cover some of the most frequently asked questions, जिसमें से first question है, should I learn AI in 2025-26? Am I eligible? So in the past few years, there have been a lot of roles which are emerging in the AI sector, in the AI industry. तो अगर हम उन roles के लिए dedicatedly prepare करना चाहते हैं, which are AI tech related roles, तो definitely we are eligible. So if we are a student जो dedicatedly AI engineering data scientist role के लिए prepare करना चाहते हैं, या फिर if we are a working professional who wants to transition to AI ML roles or who want to enhance their resume with AI ML skills, then we are eligible. इसके साथ में even if we are a student who is preparing for software engineering roles, लेकिन अपने resume के अंदर हम development and AI ML के जो projects हैं उनका एक healthy balance रखना चाहते हैं, जैसे development projects के साथ में हम 1 से 2 machine learning के भी projects add करना चाहते हैं, तो उस केस में भी we are eligible. Is this syllabus enough for AI engineer and data science roles? तो yes, the syllabus is going to be enough for AI engineer and data science roles. हमारी जो primary तैयारी है उसको हम AI engineer को ध्यान में रखते हुए करेंगे, but we are also going to become eligible for all the data science roles. As a working professional, will I get time to cover the batch? तो yes, हमारे जो batch का schedule होने वाला है वो ऐसा होगा जिसे हम as a working professional या फिर as a full time college student भी cover कर पाएंगे. हमारा batch around 4 months का होगा. इन lectures के लिए हम एक weekend schedule रखेंगे जिसकी help से we'll get ample time to cover all of the lectures in the concepts. I'm a beginner, will basics be covered? तो yes, we are going to cover the complete fundamentals. हम basic Python programming language से चीज़ों को cover करना start करने वाले हैं. So if we are a student जिसने already थोड़ी बहुत programming की हुई है या जिनको दूसरी programming languages आती हैं, या फिर if we are a student जिसने आज तक कोई programming नहीं की है, both of us can come and study from Prime. तो AI batch के लिए in terms of programming there are going to be no prerequisites. Next is what all industry roles ask for AI and ML in hiring. आज के डेट में इंडस्ट्री के अंदर देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स जो AI ML को पूछते हैं. इनमें से जो प्राइमरी रोल्स हैं जिनके अंदर मेजॉरिटी जॉब्स अवेलेबल हैं या फिर द वंस विच आर द मोस्ट सॉट आफ्टर रोल्स, उसके अंदर हमारा AI इंजीनियर, AI ML इंजीनियर, ML इंजीनियर, जेन AI इंजीनियर एंड डेटा साइंटिस्ट रोल्स आ जाते हैं. और हम भी प्राइम के अंदर इन्हीं स्पेसिफिक रोल्स के हिसाब से अपनी तैयारी कर रहे होंगे. What is the mode of communication? The mode of communication is going to be English, which is a mix of Hindi and English. वो बिल्कुल आज के सेशन की तरह होगा. मतलब जितने भी हमारे लेक्चर्स होंगे, जितने भी हमारे सेशंस होंगे, वो बिल्कुल इसी मोड में कंडक्ट होंगे जैसे आज का सेशन कंडक्ट हुआ है. तो आज का सेशन हमें अच्छे से समझ में आया तो हमारे सारे लेक्चर्स एंड सेशंस भी हमें अच्छे से समझ में आएंगे. What is the schedule of the lectures? The schedule of the lectures is going to be a weekend schedule. यानी जो हमारे लेक्चर्स हैं वो वीकेंड पर आ रहे होंगे. सो आई होप कि यहाँ तक हमारे जितने भी कॉमन डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे. एंड एट द एंड देयर इज एन इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी एक्चुअली शेयर फॉर ऑल ऑफ आवर बैचेस. किसी भी स्टूडेंट की किसी भी सिर्फ बैच के अंदर या कोर्स के अंदर एनरोल करने से एक अच्छी प्लेसमेंट या इंटर्नशिप नहीं लगती है. डेफिनेटली अगर हम एक बैच के अंदर जाते हैं तो हमें कंसिस्टेंसी की, कमिटमेंट की फीलिंग आ सकती है, हमें अच्छे रिसोर्सेज मिल सकते हैं जिनसे जाकर हम पढ़ सकते हैं. पर इवेंचुअली एक स्टूडेंट की अच्छी जगह इंटर्नशिप या प्लेसमेंट तभी लगती है जब वो उस कमिटमेंट को ऑनर करता है, जब वो उन रिसोर्सेज के ऊपर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन के साथ लगते हैं. जब ठीक है प्रोजेक्ट्स कराए जा रहे हैं पर हमने खुद एज अ स्टूडेंट टाइम लगाकर जब हम उन प्रोजेक्ट्स को करते हैं, जब हम अपनी चीज़ों के ऊपर, अपने रेज्यूमे के ऊपर, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल के ऊपर एल्गोरिथम्स को सीखने के लिए, कोड को लिखने के लिए टाइम पुट इन करते हैं, तब जाकर एक अच्छी कंपनी से हमें एक ऑफर मिल रहा होता है. तो इसीलिए एज अ स्टूडेंट हमारा हार्डवर्क एंड डेडिकेशन एंड कमिटमेंट दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो डेफिनेटली AI बैच के अंदर हमें कंसिस्टेंसी मिल जाएगी, हमें क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज मिल जाएंगे, हमें सपोर्ट मिल जाएगा. पर बैच के अंदर एनरोल करने का हम तभी सोचें जब हम खुद उन स्किल्स के ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन पुट इन करने के लिए रेडी हैं. तो वंस अगेन प्राइम की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होंगी 15 नवंबर से. एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर डेडिकेटेडली रिक्वेस्टिंग फॉर द बैच देयर इज एन अर्ली बर्ड ऑफर जो रहेगा अगले 4 दिन यानी 27 अक्टूबर शाम के 9 बजे तक. द लिंक फॉर द बैच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आज के लिए इतना ही. सी यू इन क्लासेस. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth.